याद आ रहा हो तो. Yes, a different type of stone ages. In a prehistory, we have discussed it. In a first chapter, it is an example of the prehistory. Now we will discuss in a deep what is the prehistory example of different stone ages. कौन सी हमारी different stone ages थी. Second thing, you all know that slowly the man has developed himself. Yes, you have seen a one picture in your book, a man evolution. Yes, first how पहले उसके जो slowly the teeth had been decreased or increased. They have mind have developed. Sorry. Okay. Modern human probably between the 1 and 50 lakh to 200 years ago. Scientists have believed that involved Africa has spread everywhere. The acts of human beings develop a common ancestor. The brain become a larger and the jaw and teeth become a smaller. उनका जो brain क्या वो धीरे धीरे time जैसे brain have been developed and teeth have been smaller. We have discussed in a previous class about that. And the hand become free. They have learned to use a tool. सबसे important चीज क्या है? Stone ages. हम इसको stone ages क्यों कहते हैं? Phases of stone ages. Because we have learned how to make a tools from the stone. Step by step कैसे tools की shape change हुई. And the things that we have discovered. Suppose the fire. फिर fire discovered की उन्होंने दो stones they have rubbed it and they have discovered the fire. And what is the use of fire they have learned. फिर नेक्स्ट स्टेज में क्या करते हैं फायर के थ्रू दे हैव लर्न टू सेव देयर सेल्फ बाय द वाइल्ड एनिमल्स. दे स्टार्ट कुकिंग द फूड. पहले स्टार्टिंग में वो कौन सा रॉ फूड खाते थे? रूट्स फ्रूट्स. यस, दे हैव डिडंट हैव अ शेल्टर. दे स्टे इन द केव्स. धीरे धीरे दे हैव डेवलप्ड देयर सेल्फ. फिर फायर डिस्कवर्ड. फिर दे स्टार्ट कुकिंग द फूड. दे हैव स्टार्ट हंटिंग फिशिंग एंड फूड गैदरिंग स्टार्ट कर दी थी. देन द नेक्स्ट थर्ड एज में आके उन्होंने क्या किया था? न्यू एज जिसे कहते हैं न्यूलिथिक एज. दे हैव लर्न टू बी. उनके जो टूल्स हो गए थे वो कैसे हो गए थे? वेल पॉलिश टूल. ये सब मैंने आपको लास्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस की थी पिक्चर. मैंने आई हैव जस्ट टोल्ड यू, आई हैव डिस्कस ऑल दैट चैप्टर इन अ वेरी स्मॉल वीडियो अबाउट दैट, है ना. क्योंकि आपको ध्यान है कोर टू द शार्प एजेस में थे, थोड़ा शेप चेंज हो गई थी. एंड दे हैव बीन अ वेल पॉलिश टूल्स. And they have start drilling the soil. और फिर उन्होंने क्या किया था? Just start farming. उन्होंने खेती कल्टीवेशन शुरू कर दिया था. फार्मिंग करना स्टार्ट करना क्योंकि the tools had been in shape or had been a very well polished. At the last is Kerolithic stage of a copper age. Basically हम इसको 3 stages में divide करते हैं. But it's for all. Okay. So I'm sharing you the chapter. One by one you will read it. Everyone just pay attention in your book. I hope we have discussed till this point the life of early human. Yes. Who are called hunter gatherers? कौन होते हैं hunter gatherer? Who gathered the food? देखो, a hunter gatherer they lived in a cave or tree tops of where the leaves, the bark, trees and skin animal जो tree top पे रहते थे caves में. And they have started. उनकी clothes किसके बने होते? Leaves के, bark, trees and animals की skin के. And hunter gatherers are the hunter gatherers. Animal gathers the food. कौन होते हैं जो food gather करते थे? Fruits, nuts, roots to eat. Okay, we have discussed now the phases of the stone age. A very important point from your book. Just mark in it. आपको chapter I will summarize में एक छोटा सा chart share करूंगी. The comparison between the two main stone ages. First I will finish my chapter, then I will share you the one chart. Okay. Now, the phases of the stone ages. You are the earliest time that is about the
12,000 and BC. BCR ये टाइम पीरियड टाइमलाइन को जानने के लिए. You all know that to know about the timeline, a chronological order. कल एक बच्चा मुझसे पूछा था मैम how to calculate the time, a chronological order. The birth of Jesus Christ. Yes, before the birth and after the birth. मैंने ये चीज बताई थी आपको previous chapter. तब भी कहा था just mark it because it will come 100 times in your coming chapters. BC means before Christ. At the early humans, just a 1 minute. Okay, used to for making a tools and weapons. What are the phases of a stone age? पूरा जो stone age है हमारे जो भी प्री हिस्ट्री रिकॉर्ड, ये प्री हिस्ट्री रिकॉर्ड इज द टाइम पीरियड ऑफ द हिस्ट्री. आपको पता है ना हिस्ट्री को दो पीरियड में डिवाइड किया था, प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री. प्री हिस्ट्री कौन सी थी? जिसके कोई रिटन रिकॉर्ड्स नहीं थे. एंड हिस्ट्री हैविंग अ रिटन रिकॉर्ड, सपोज अ मॉन्यूमेंट, कोई अपनी रिलीजियस बुक है, कोई समथिंग आर्कियोलॉजी. बट स्टोन एजेस are the example of the prehistory. And सबसे बस stone के नाम से ही clear हो जाना चाहिए. It used for the making tools and weapons. किसके लिए use किया गया था ये? It is used for the tools and weapons. Just underline in your book. The early human used stone for making tools and weapons. What did the early human man used stone for? So you will give the answer for tools and weapons. Agar okay. Now this period has been, stone period are divided into main 4 categories, or you divide it in further 4 types. Suppose Paleolithic age 5 BC to 10,000 BC. Mesolithic age to 10,000 BC to 8,000 BC. Neolithic age 8,000 BC to 4,000 BC. आपने ये देखा टाइम पीरियड मैंने आपको बताया था. जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं टाइम पीरियड हमारा जो टाइम, just have a calculation of 10,000 BC to 8,000. 8,000 BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले की बात हो रही है. Paleolithic 4,000 to 2,000 at BC. One more thing, you will fill this map in your map book. Okay, because अभी देखो you having a showing a ancient type of ये map है, a 4 stone ages. Suppose Paleolithic is marked in a red. Kurnul cave, Hansi. Okay, Gujrao, Mehndar. देखो Gujrao is the Neolithic side. अब ये at recent time it's about Jammu and Kashmir. ये Arunachal Pradesh. It is a south area comes downstairs. Okay. Now sites and evidence. Evidence. What is the evidence? Evidence होते हैं कि आपको उस समय के तर्क जो मिलते हैं. Evidence of hunter gatherers have been discovered in many places. आपको पता है archaeological sources जो होते थे हमको study to find out about the previous incidents that happened in the history. ये कौन होते हैं? स्कॉलर्स जो होते हैं अपने एंसेस्टर, हिस्टोरियंस कौन होते हैं? टू स्टडी अबाउट द पास्ट और टू फाइंड आउट अबाउट द एविडेंस. उसके इन एविडेंस के थ्रू ही तो हम जान पाते हैं कि उस समय क्या क्या चीजों का यूज हुआ था, किन चीजों का यूज नहीं. फायर डिस्कवर्ड हुई तो आपको मैंने ये चीज बताई थी ना, व्हेन उस समय जो एविडेंस पे उन लोगों को क्या मिले थे? एशेस मींस राख मिली थी. तो उस राख से उनको क्या लगा कि दे हैव नो अबाउट दैट कि फायर क्या होती है एंड व्हाट इज द यूज ऑफ फायर. Have been discovered in many places. Evidence of form of stone tools so finished and unfinished. अब स्टोन एजेस की बात हो रही है. स्टोन एजेस प्री हिस्ट्री में स्टोन एजेस की, तो या तो उनके स्टार्टिंग में अगर हम किसी चीज को लर्न करते हैं तो वी आर नॉट सो मच एक्सपर्ट, हमारी परफेक्ट की शेप नहीं आती है. ऐसे ही सेम द स्टोन एजेस की जो स्टार्टिंग थी स्टोन टूल्स को बनाने की, एक तो फिनिश्ड and unfinished. These places are called sites.
A few sites are marked in level and the mark above. अब ये यहाँ पे मैप में मार्क हो रहे हैं आपके. You will notice the some of them are near the river. अब some कुछ है देखो रिवर के आसपास है, क्योंकि रिवर के आसपास क्यों रहते थे ये लोग? To survive, कल्टीवेशन के लिए. दे नो दैट कि यहाँ पे पानी है तो यहाँ पे खेती कर सकते हैं, फार्मिंग कर सकते हैं, स्टार्ट क्रॉप. वी हैव लर्न अबाउट दैट ना, फूड गैदर. यू नो अगर पानी होगा तो पेड़ पौधे भी होंगे, फ्रूट्स भी होगी, रूट्स भी होगी, एनिमल्स भी होंगे. और थोड़े दिनों बाद ये क्या करते थे, वंडर्ड होते थे, एक प्लेस से दूसरी प्लेस चले जाना. Rivers, so they could get a sufficient supply of the water. They would get a sufficient supply of the water. Okay. The places where the ancient tools were made being named a factory site. ये मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, फैक्ट्री साइट, जहाँ पे प्राचीन टाइम में मतलब पहले के टाइम में जो टूल्स बनाए गए थे उनको हम क्या कहते थे, फैक्ट्री साइट्स. Just underline this line in your book. The place where the ancient tools were made being named as a factory sites. The site with traces of the animal remains are artifacts and terms of habitation come of factory sites. These are the places where the hunter-gatherers must be stay for the long period time. ये क्या था, मतलब यहाँ के टाइम पीरियड के थ्रू वो जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने जाना कि यहाँ पे काफी लंबे समय के लिए वो जो पीपल क्या थे स्टे करते थे फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड. हाउ दे हैव बीन आइडेंटिफाइड? The habitation come of factory sites. और factory sites क्या होती थी, जहाँ पे tools बनाए जाते have been been named. The place with the ancient tools were been named by the factory site. These are the places where hunter gatherer must stay for the long period. Now they have, मैंने आपको बताया, it have been divided into 4 main categories of the phases of stone ages. पैलेलिथिक और स्टोन एज. देखो सबसे इजी तरीका है अगर आपको स्टोन एजेस को याद करना है, ओल्ड, मिडिल, न्यू एंड कॉपर. ओल्ड, मिडिल, न्यू एंड कॉपर, यही है आपके. एंड इट्स हैविंग अ नेम ऑफ अ ग्रीक वर्ड. और इनका जो एंशिएंट नाम दिया हुआ है पैलेलिथिक, ये क्या है, एक ग्रीक वर्ड है. ग्रीक वर्ड से इनका नाम दिया है. नियोलिथिक, पेल, नियो, मिसो, ये इनके स्टार्टिंग के जो वर्ड्स है. एंड लिथोस मींस, लिथोस का मतलब क्या था, स्टोन. सिर्फ आपको स्टार्टिंग के 2 वर्ड का मतलब याद करना है. पेल मींस ओल्ड, लिथोस मींस स्टोन. तो ओके, द वर्ड comes from a Greek word. कहाँ से आया ग्रीक वर्ड? इट मींस अ ओल्ड टाइम पीरियड, सबसे प्राचीन जिसे बोलते, सबसे ओल्डेस्ट. लिथोस मींस, लिथोस का मतलब होता है स्टोन एज. आप हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, स्टोन एजेस के बारे में. वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द स्टोन एजेस. इट इज अ पार्ट ऑफ द प्री हिस्ट्री टाइम. प्री हिस्ट्री जिसका कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं था, सिर्फ उनके जो एविडेंस मिले थे, उनके तथ्य जो मिले थे हिस्टोरियंस, उसके बेसिस पे दे हैव बीन आइडेंटिफाई कि हाँ, they have been used a finished tool, unfinished tools, or different types of shaped tool, or water supply. This they have been marked. जहाँ जब नदियाँ थी, rivers थी, they know that की water supply है. वहाँ के एरिया में क्या हुआ ना, they have been stay. आपने देखा पूरा all over इंडिया के अंदर मैप फिल नहीं हो रहा. a particular river area जहाँ पे उधर, and they have wandered one place to another. क्यों जाते थे पानी? क्योंकि यूं अगर वो एक जगह पे रह रहे हैं तो उनको पता है कि यहाँ पानी है, तो थोड़े टाइम के वो चीजें क्या होती, खत्म तो होती है. रिवर, दे हैव बीन आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ हाउ टू कल्टीवेशन, सॉरी. द पीरियड एक्सटेंड फ्रॉम द 5 BC to 10,000 and BC. अभी देखो कितना लंबा, 5 लाख से लेके to 10 BC. It means before the Christ, Jesus Christ की birth. पैलेलिथिक एज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको हर एजेस में 4 चीजों का ध्यान रखना है. क्या? सबसे पहले क्या डिस्कवर्ड किया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, किस टाइप के टूल्स यूज किए, एंड व्हाट इज देयर, व्हाट हाउ दे सर्वाइव. टूल्स
स्टोन टू, देखो स्टोन एज है तो आपको हर चारों एजेस में आपको ये यू हैव टू बी नो दैट, आपको पता चलेगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन्स हैं और उन स्टोन्स को कहते हैं ना, अगर आपके पास कुछ एक चीज ऐसी है जिसका अलग अलग नाम है, एक सबसे अच्छा एग्जांपल है आज की टुडे यू हैविंग अ मोबाइल, ठीक है, पहले हमारे पास छोटा सा मोबाइल हुआ करता था ब्लैक एंड व्हाइट, नोकिया, रिमेम्बर नोकिया 1100 एंड समथिंग, धीरे धीरे टाइम पीरियड चेंज होता रहा, तो इट बीन अ एंड्रॉइड फोन पे थोड़ा चेंज हुआ, तो बीन सो मच एप्स आर देयर, उसी तरीके से स्टोन टूल में भी पहले दे हैव नो दैट हाँ कि स्टोन है, थोड़ा सा शार्प एज किया, पेना किया तो इट बिकम एन शेप ऑफ अ टूल, उन्होंने उसको एक्स बना लिया, या दे हैव लर्न टू रॉक पेपर्स, उन्होंने रूट्स काटने के काम में लिया, कटिंग द ट्रीज, फिर थोड़ा सा मॉडिफाई हुए वो फायर को जिसका, तो धीरे धीरे दे हैव बीन लर्न. Underlying this line, the Greek word "telos" means the old, pale, lithos means stone. What is that work? How they had सबसे food gather or hunters. इनका क्या काम था? Food gatherers and hunters. Humans work क्या थे ये लोग? Food gatherers and hunters. Food gatherers क्या होते हैं? जो roots, fruit, nuts इनको इकट्ठा करते थे, and hunters means शिकार करना. At the beginning of Paleolithic age, early human needs a crude chopping tools, crude chopping tools and chipping tools. Crude underline कौन-कौन से tools बनाए थे इन्होंने? Crude and chipping. और इसके दो टाइप्स के स्टोन, इसमें भी दो तरह की कैटेगरीज थी. फर्स्ट इज core and second was flake. Flake and core. Two types of tool, core and flake. ये देखो, you have seen a picture, मैंने आपको पहले उसमें भी दिखाई थी. ओके, कोर टूल, अब इनका क्या क्या यूज है? कोर टूल का क्या यूज है और फ्लेक टूल का क्या यूज है? कोर टूल की जो शेप होती थी वो ओवल शेप में होती थी, और जो फ्लेक टूल की जो शेप होती थी वो पीसेस ऑफ, व्हाइल मेकिंग अ कोर टूल, इनके छोटे छोटे पीसेस के लिए. ओके, और चंक्स ऑफ स्मॉल पेपर्स, छोटे छोटे पत्थर. डिगिंग मतलब गड्ढा खोदना, रूट्स को काटना, कटिंग द ट्रीज, इनके लिए यूज करते थे स्टोन. जो इनका जो कोर टूल था, वो कोर टूल का यूज किस चीजों के लिए होता था? कटिंग द ट्रीज, डिगिंग के लिए. एंड द फ्लेक टूल की जो होता था, फ्लेक टूल क्या है? शार्प पीसेस, एकदम देखो ये हैविंग अ शेप, बीन व्हाइल मेकिंग अ कोर टूल दे यूज फॉर स्किन, हंट एनिमल एंड चॉपिंग द फ्लैश. किस चीज के लिए? स्किन एनिमल्स, उसकी जो स्किन होती थी एनिमल्स की, आपको मैंने बताया था हंटर गैदर्स कहाँ रहते थे? केव्स और ट्री टॉप पे रहते थे. खाना क्या खाते थे? रूट्स, फ्रूट्स और ये नट्स. और किस टाइप के क्लोथ पहनते थे? लीव्स से या एनिमल की स्किन. तो अगर एनिमल की स्किन को वो किसके अपने उन्होंने ऐसे टूल्स बना लिए थे, फ्लेक टूल एंड द कोर टूल, एंड दे हैव बीन यूज्ड फॉर स्किन हंटेड, उनकी स्किन निकालने के लिए, चॉपिंग द फ्लैश. ओके, क्लियर? Now studies shows the hunter-gatherer did not build the houses. अब हमको ये आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि स्टार्टिंग जो ओल्ड एज थी, ओल्ड एज मीन द स्टार्टिंग ऑफ बेसिक ऑफ ह्यूमन हैव बीन डेवलप्ड, देयर ब्रेन एंड द टीथ वर बिकम अ स्मॉलर. यही बात थी अर्ली ह्यूमन की. और दे हैव स्टार्ट लर्निंग, उन्होंने धीरे धीरे स्टोन टूल से उन्होंने छोटे छोटे टूल्स, कोर एंड फ्लेक टूल बनाए. फिर उनको घर बनाना नहीं आता, दे डिडंट नो हाउ टू बिल्ड द हाउसेस. और वो किस पे रहते थे? रॉक केव. शेल्टर कहाँ पे थे? और वो जो नेचुरल बेस थे, जो नेचर के थ्रू बने. आपने देखा है जो केव्स होती हैं, रॉक शेल्टर, पहाड़ियां होती है, रॉक्स होती है, शेल्टर्स होते हैं, केव, ये एक नेचर के अपने आप बिल्ड होते हैं. और टेम्परेरी हाउसेज होते हैं, मतलब दे हाउसेज आर नॉट अ परमानेंट. अपना आज अपना घर इज हैविंग अ परमानेंट हाउसेज, बट दैट टाइप ऑफ हाउसेज वर नॉट अ परमानेंट केव्स. और वो लोग एक जगह से दूसरी जगह वंडर करते थे, घूमते थे ना. दे डिडंट स्टे अप. Sometimes they live a hollow trees, means deep. In early stages of Paleolithic ages, they did not wear the clothes. However, as time passes, they began to cover
they begins to cover themselves. अब देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ने मुझे आप उन्होंने क्या हर चीज सीखी, घूम घूम के इधर उधर, फिर उन्होंने पहले रूट्स अपने उन्होंने टूल्स बना लिए, फिर उनको लगा कि हाँ डिगिंग कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं, दे हैव स्टार्ट लर्निंग टू हंटिंग द उनका फ्लैश स्किन को कैसे स्किन को फिर दे themselves bark of the trees and dried skin of animals. फिर जो स्किन की जो एनिमल्स की स्किन होती थी उससे वो क्या करते थे, उनके कपड़े वो पहनते थे, लीव्स के कपड़े बना के. They use a sharp bones. They use a sharp bones, a needle to stitch the animal skin apart into the clothes. अब देखो उनको किस चीज की समझ आ गई थी, उनको ये पता था स्टोन एज में, उनको ये था कि हाँ हमने दो स्टोन को थोड़ा शार्प किया, पेन फॉर किया, फ्लेक किया, फेक किया, शेप्स को चेंज किया, पेन नुकीले करके स्किन एनिमल्स की स्किन हम उतारेंगे, तो अब उस स्किन को सुखा के अब उन्होंने उसको एक जो बोन होती थी बोन्स, दे यूज द शार्प बोन एज अ नीडल. जो शार्प बोन जो बोन्स होती थी इनकी जो उनको निडल सुई के रूप में, और एनिमल की जो स्किन होती थी उसको स्टिच करके कपड़े पहनना शुरू कर दिया. मतलब दे हैव स्टार्ट लर्निंग. ओके नाउ द फ्रेक, अब आपको यू हैव टू solve in your book. देखो look at this picture, identify the core of fake tool. core tool कौन से होते हैं, ओवल शेप के होते हैं, और फेक टूल होते हैं जो पॉइंटेड होते हैं. ओके नाउ ह्यूमन डिस्कवर्ड द फायर, अ वेरी इन्वेंशन. सबसे टाइम पीरियड जो चेंज हुआ किससे हुआ, a time has been changed after the fire had been discovered. किससे टाइम पीरियड चेंज हुआ है, जब ह्यूमन हैड डिस्कवर्ड द फायर. और हम आज तक हमने पढ़ा कि दो स्टोन को स्टोन टूल है, they have been doing a very invention और lots of discover each and every, उन्होंने बोन को डिस्कवर कर लिया एक नीडल के रूप में, और बोन से वो अपने स्टिच करते थे क्लोथ्स, और बात स्किन के एनिमल्स की स्किन निकाल के वो दे हैव स्टार्ट wearing the clothes. और फिर अब एक देखो how they have discovered the fire. Human discovered the fire. Just write a very important point in your book. One of the greatest discovery made by the early humans was the fire. सबसे important और सबसे greatest discovery कहते हैं ना आज तक की, जो हमारे आज तक काम में आ रही है वो क्या चीज है, it is fire. Was fire. ये चीज हमने यू हैव टू नो दैट फायर, एक हमने अनसीन पैसेज भी पढ़ा था, फायर इज अ फ्रेंड एंड फायर इज अ एनिमी. It will never be know how it happened. Perhaps two flints were rubbed together accidentally, the spark fell on some dry leaves lying near. किसी को भी नहीं पता ये कैसे हुआ, पर कहते हैं कि जब दो स्टोन्स को फ्लिंट मींस दे हैव बीन रब, जैसे कोई चिंगारी निकली और सूखी पत्तियां थी नीचे और उसमें क्या हो गई, उसमें फायर आग लग गई थी. And fell on some dry and leaves lying nearby. On the perhaps the lightning struck a tree and it went up a flame. और जैसे ही वो चिंगारी से उन सूखी पत्तियों में लगी और उससे क्या हुआ, एक चिंगारी निकली और उसमें फ्लेम्स भी, वो जल गई, और जलते लंबी लंबी क्या आने लगी, फ्लेम्स आ गई. Over a period of time, human learn to use a fire. और जैसे जैसे टाइम बीता, they have learned how to use a fire. Use of fire to scare the animals and wild animals को डराने के काम में लेने, या फूड जो पहले वो रॉ फूड खाते थे, कच्चा खाते थे, अब दे हैव स्टार्ट रोस्टेड और उसको कुक खाने लग गए, और उनको उस चीज का टेस्ट इज गुड. और फायर का जो कुकिंग फूड खाते थे वो कुक फूड, इट बीन अ नो दैट द टेस्ट ऑफ द फूड. They probably use the fire to light up the cave dwelling as well. और caves में okay, human discovered fire was the greatest discovery of humans. और they have start कैसे क्या, they have flint to, they have rubbed to stones, और जैसे जो रब किया एक चिंगारी निकली सूखी ड्राई लीव्स में क्या हुआ, had been some spark and से flame सूखी, and they have been discovered. And उसके बाद धीरे धीरे they have learned, human learn how to use of fire also. और फिर कैसे फायर को यूज करना है, they have start learning to scare the wild animals, they have start learning to cook the food. Okay, देखो
Robert Bruce Fruit was the first to discover a Paleolithic stone in India in 1863. सबसे पहले इंडिया में the Robert Bruce Fruit, just underline it. It is very important. Okay, the tools were used for make a rock, and the man is made is also. Now the next age. सबसे पहले थी ओल्ड एज जो पेलोथिक लियोथिक लिथोस मीन्स लिथोस का मतलब होता है स्टोन, हर वर्ड में आएगा लिथोस और उसके आगे पेल मीन्स ओल्ड. नाउ मीसोलिथिक या मीसो मीन्स अ मिडल and lithos means stone. It is a time period about the middle stone age. किसके बारे में बात हो रही है? Middle stone age. These are first stage old age में human had discover hunter gatherer थे, shelters पे रहते थे, rocks में, और they have start wearing the animal skin clothes. They have discovered the fire. They have discovered to learn how to cook the food. They have discovered to how to use a bone to stitch their clothes. और उन्होंने जो स्टोन के जो टूल्स वेपन्स बनाना शुरू कर दिया था. और किस टाइप के बनाए थे? कोर एंड प्ले. थोड़े पॉइंटेड थे, थोड़े ओवल शेप में थे. अब देखो कुछ फिर उन्होंने फिर डिगिंग करना स्टार्ट कर दिया, कटिंग द ट्रीज. अब कौन सी स्टेज आई है हमारी? मिडिल स्टोन एज. और इसमें हम क्या, जो मिडिल मीन्स द टाइम ऑफ बिटवीन न्यूलिथिक एंड द ओल्ड एज, इन दोनों की टाइम के बीच की जो बात. It is a time period about 10,000 BC to about 8,000 BC. Okay, man begins to make a better, more advanced tool. अब उसमें पहले तो उन्होंने कोर एंड फेक टूल्स पॉइंटेड ओवल शेप में एंड पॉइंटेड. अब इससे भी बेटर टूल्स बनाने को they have been learned. Mesolithic human being lived on hunting, fishing and food gathering. देखो, just underline this line. स्टार्टिंग में जो ओल्ड एज थी उसमें सिर्फ उन्होंने क्या सीखा था? हंटर गैदर्ड. सिर्फ उन्होंने क्या सीखा था कि हाउ टू गैदर द फूड, रूट्स, नट्स, शेल्टर थी, और हंटिंग नहीं सीखी थी. फूड गैदरिंग उनको आती थी, पर उन्होंने जो टूल्स पे यूज करने लग गए थे, फायर डिस्कवर्ड हो गई थी. अब इस एज में आके दे हैव लिव्ड ऑन हंटिंग. अब किस पे डिपेंड होने लगी? हंटिंग, फिशिंग एंड फूड गैदरिंग एंड डोमेस्टिक एनिमल्स. जैसे डोमेस्टिक एनिमल्स को रखने के लिए डॉग, शीप, गोट एंड कैटल एंड सब्सटेंस ऑफ एनिमल मींस टू हाउ टू लुक केयर ऑफ, टू टेक केयर ऑफ द एनिमल्स. During this time, they have learned a better tool. They have been used the bones on animals also. उन्होंने animals की bones, seeing bones उनकी, they have been used. पहले तो stone से, पर अब उससे किसके से? bones and horns से भी उनके tools बनाना शुरू कर दिया. The result is bow, arrow, a fishing hook. मतलब अब fishing के fishing आपको पता है कि एक मछली को काटते हैं जिससे hook होता है इसको. A sharper, more refined tools, arrowhead and spread air were used. Okay, and new stone age and the copper age. Now the Neolithic. Neo means a new. Neo means a new stone age. Okay, the word neo is a Greek word, means a neo. Lithos means a stone. Same the time period of 8,000 BC to 4,000 BC. अब इसमें भी क्या था? इसमें भी well polished tool का यूज होने लग गया. The tools were being used, a well polished tools. Hand axe, common tools were used. Soil, hand axe का यूज हो गया. Common soil, well polished tools थे. और soil, farming, they have started doing a farming to narrow range of plants. Domestication of animal, invention of pottery, of important feature of this period. सबसे important feature क्या है? The pottery, the invention of the clay pot and the hand axe, the common tools. A very important feature of this period. Okay,
had they have learned the different stone tools are given by the sharp edges. The sharp edges, the axe had been exterior outside were very fine, polished with increased human axe begin to settle down and beginning of farming these axe. अब इसमें पहले middle stone age में they have start learning hunting, fishing and food gathering. और इस stone age में क्या है? They have learned how to do a farming, cultivation, animal invention of the potteries. A human begins to settle down beginning of farming. These egg sets are mainly used for clearing the forest. The last of copper and lithos already that a copper stone age. It is an implement of to make a period of time period of 4000 BC से लेके 2000 and people invented the plow, wheel, cart and sailboat. क्या plow, wheel, cart and sailboat. Wheel have been discovered and they discovered how to mix a metal and get a stronger tools, vessels and weapons. Copper के through they have पहले stone से बना रहे थे, bones से, horn से, and now in this period they have been learned how to use and mix the metals and make a tools and vessels and weapons. Okay. Anybody? Anyone having a problem, you may ask me. Question answer and book exercise we will do in our next class. Okay. It's just only about the 4 stone ages: old, middle, new and copper. और इन stone ages में क्या सीखा? They have learned only how to use the, how to make be made a stone, उनका uses. और जैसे जैसे time they have learned to sharper tool. फिर उन्होंने stones, पहले उन्होंने horns तो oval shape में and flake tool में बनाया. फिर they have start discovered the fire. उसके बाद middle age में they have been learn the bones and the horns. उनके जो सींग होते थे, उनकी जो हड्डियां होती थी, उसके थ्रू they have been make a tools. फिर लास्ट में जो अपनी न्यू एज आई, उसके बाद उन्होंने किसमें they have been learn a more finest tool, मतलब और भी शार्प जिसे बोलते हैं. और उससे वो उन्होंने क्या करना? फार्मिंग, खेती करना शुरू कर दिया. एंड पॉटरी मेकिंग, क्ले पीरियड ऑफ टाइम. ओके. एंड लास्ट कॉपर, जो कॉपर एज आई थी, उसमें क्या है? दे हैव लर्न हाउ टू मिक्स the metals and make a weapon and tools. Okay. Starting with food gathering and food hunters. Second stage में आके, अपना middle stage में आके, they have start learning the fishing, food gathering and hunting. Fishing कैसे? Because they have, आपने बताया ना कि उन्होंने bones के through उन्होंने hook, मींस कांटा जिसे बोलते हैं, मछली का फिशिंग करने के लिए काम में आता है. They have been learned how to make न्यूलिथिक एज में जो अपनी न्यू स्टोन एज थी, they have learned very finest tool, जिसके लिए थ्रू खेती करने लग गए. They have start very well shaped and polished tool. They start learning the farming and the pottery. And the last was the copper age, जिसमें they have learned copper के through. Copper, you know that all, it is a metal, and metal को mix करके किस तरीके से tool and weapons बनाए जाते हैं. And उसके टाइम, copper के टाइम, they have discovered the wheel cart and the sailboat. Wheel का invention. Okay. Yes, Palak. Unmute yourself. Excuse me, ma'am. हाँ. Ma'am, what is the basic of this chapter? Sorry. What is the basic of this chapter? What is the basic of this chapter? Yes, ma'am.
What is the basic of this chapter, beta? Vidushi, 1 minute, Palak. Vidushi, Vidushi, Vidushi. Palak, it is a chapter about a stone ages. हाँ या ना? अब इस चैप्टर हमने क्या, मैंने आपको बताया था हिस्ट्री के दो टाइप की पीरियड होते हैं, प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री, रिटन रिकॉर्ड्स और नो रिटन रिकॉर्ड्स। जो नो रिटन रिकॉर्ड थे वो प्री हिस्ट्री के एग्जांपल थे। मैंने बताया था डिफरेंट स्टोन एजेस जो आएंगी अपनी। अब इसके अंदर आपने स्टोन एज, आपको पता है टाइम पीरियड बढ़ा जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ था ह्यूमन बीइंग्स का। पहले कहते ना एक बंदर से लेके दे हैव स्टार्ट लर्निंग एज अ ब्रेन डेवलप होता गया, उसी तरीके से आदि मानव जो थे पहले के टाइम में, जो ह्यूमन थे अर्ली ह्यूमन, उन्होंने वो इधर उधर घूमते रहते थे। दे डिडंट नो हाउ टू लिव इन अ फैमिली, दे हाउ टू मेक अ सोसाइटी, हाउ व्हाट इज देयर लाइफ। तो उन्होंने धीरे धीरे दे हैव लर्निंग दैट ना, उन्होंने केव्स में रहना शुरू किया, शेल्टर और ट्री टॉप्स। अब वो रह रहे हैं, वाइल्ड एनिमल्स को किस तरीके से वो सेव करेंगे। तो उन्होंने टूल्स होते हैं, आज आपको कुछ ही चीज से सेव करना है, तो जिस सिचुएशन में रह के उन्होंने दे हैव लर्न टू यूज अ स्टोन। स्टोन को किस तरीके से यूज किया, एक टूल में, एक वेपन में, एक हथियार के रूप में। और जो स्टोन होता था उसको फिर उन्होंने वाइल्ड एनिमल्स को, हंटर गैदर फूड को, कटिंग द ट्रीज, एनिमल्स की स्किन निकाल के उससे कपड़े पहनना शुरू किया। ठीक है, फिर थोड़ा टाइम बीता, फिर दे हैव स्टार्ट लर्निंग द हंटिंग, फिशिंग, और एनिमल की बोन्स होती थी, उनकी हड्डियां, उनकी सींग, उनसे उन्होंने क्या किया, टूल्स बनाना शुरू किया। मेन तो इस चैप्टर का था दे हैव लर्न द टूल्स, और किस तरीके से दे हैव टू बी सर्वाइव, हाउ दे गैदर्ड द फूड। फायर डिस्कवर्ड हो गई, पहले वो रॉ कच्चा खाना खाते थे, पर अब उनको पता चल गया कि यहाँ फायर डिस्कवर्ड हो गई। एनिमल, वाइल्ड एनिमल्स को डराने के काम में लेना, केयर करना, स्टार्ट कुकिंग द फूड, बेक करके खाना खाने लगे। ओके, सो नाउ जस्ट विदुषी, विदुषी अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। विदुषी, मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। अब आ रही है मेरी वॉइस क्लियर? नो मैम। अभी भी नहीं आ रही है? नो मैम। It's okay now. Now, today you will read the. Okay. In next class, I will give you a chart comparison between new Stone Age, Middle Stone Age, and Old Stone Age. एक chart बना रखा है because lots of students has leave the class. I know that you having a next class also. Yes, ma'am. Book exercise, question answers we will do in our next class. Second important thing what you have to do. Tomorrow is your English Google Form test. I have given you one assignment. You have to send me till 12 noon tomorrow of assignment number A6, page number 229. It's for the 5 marks. Second, about SST oral, I will inform you. Okay? So thank you so much. Good day. Bye bye. हाँ मैम, कल आप जब इंग्लिश का एमसी गूगल फॉर्म टेस्ट लोगी मैम, तब आप ओरल भी लोगी क्या? मैं ले, हाँ, अगर हैविंग अ टाइम तो मैं आपका कल ओरल भी ले लूँ। टाइम पीरियड पे डिपेंड करता है, बिकॉज वी हैविंग अ 45-30 मिनट्स ऑफ गूगल फॉर्म टेस्ट। ओके, नहीं तो आई विल इन्फॉर्म यू ईच एंड एवरी पॉइंट कि आपका किस टाइम पीरियड में किसका मैं ओरल लूंगी। आप चिंता मत करो इस चीज की। ओके, और मैम हमको टेस्ट भी सबमिट करवाना है, और ये जो आपने वो दिए एक्सरसाइज वो भी सबमिट करवानी है मैम। आपको इंग्लिश में ओरल की जगह आई हैव गिवन यू वन असाइनमेंट। आपकी वर्कबुक में एक असाइनमेंट दिया है मैंने करने को, और 5 मार्क्स है ना। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट एसएसटी ओरल। ओके ओके मैम। मैम वो A6
एक्सरसाइज वाला ना? हाँ, A6 एक्सरसाइज वाला. ठीक है. नाउ जस्ट टेक अ ब्रेक एंड रेडी फॉर योर नेक्स्ट क्लास. बाय बाय. थैंक यू सो मच. बाय मैम.